We are starting now. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबकी आमद का शुक्रिया। फ़नून फ़ोरम के 27वें सेशन में आप सबको खुश आमदीद और हैबिट सिटी का खुसूसी शुक्रिया जो हमें ऐसी महफ़िलें सजाने का मौका देता है और हमसे इश्तिराक करता है। Okay, I'm Shoaib Arshid, the founder and executive director of Fanoon Forum. And today we are presenting our need of the hour session on the shifting global order with wars ongoing left, right and center as we speak. Fanoon Forum is one of a kind youth-centric space building an informed and involved community to enrich the next generation, connect aspirants with achievers and promote intellectual dialogue in society. We have been curating impactful sessions, organizing projects for youth, and linking the youth with coveted opportunities since January 2024, and we are doing that today as well. We are completely youth-led and free and open for everyone. Before introducing our speaker, I would like to repeat to everybody who's present that we are offering 2 internships with the speaker today. A graduate level paid internship and an undergraduate internship. If you are a candidate for those internships, then please sign up with Shazen and only then we'll be able to know that you are vying for this internship amongst many others, and you'll have to ask a question. And I'm sure there are lots of questions naturally today. There could be no better person than our speaker today to talk about the developing state of international affairs. She's a distinguished international relations expert, political analyst, and academic who currently serves as the rector of the Millennium Institute of Technology and Entrepreneurship, and has previously served as the associate professor of social sciences and liberal arts at IBA. She is also a scholar, reviewer, and author known for her extensive international and national publications, which includes books and numerous research papers. She is regularly seen on the screen and in the media, international and national, and also in conferences, literature festivals, seminars, as an expert speaker on international relations, security, and other political affairs. In addition, she serves as an advisory on advisory and governance boards and also serves as a corporate trainer. Indeed, Pakistan is proud to have her. Please welcome Dr. Huma Bakai. Thank you so much. Thank you. So, despite what he's just said, I'm a boring professor, and because I've been in the administrative rut for the last 4 years, whenever I get a chance to speak to an audience, I love it because it's like going back to the classroom. But that is, and what I was known when I was teaching was that people could interrupt me during the course of my lecture and ask questions. The same rule today, you can stop me anytime you want, ask a question and I'll respond. And otherwise, of course, we can do the usual that we do कि हम बाद questions in the end, okay, लेकिन अगर आपको बीच में आपका दिल चाहे कि कोई बहुत बर्निंग सा सवाल है तो आप ज़रूर पूछें, मैं कोशिश करूँगी मैं जवाब दे दूँ। ताहिरा, आप लोग यहाँ आ जाओ, हाँ प्लीज़। सो ये टाइटल मैंने नहीं बनाया, टाइटल बनाया अर्शद ने। उसने कहा कि द लास्ट वर्ल्ड ऑर्डर। मुझे ये पता है कि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी लिव इन व्हाट आई कॉल अ डिसऑर्डर। ऑर्डर बहुत अरसे से ख़त्म हो गया, हम उसको मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। ऑर्डर उस वक्त ख़त्म हो गया जब गज़ा में जो कुछ हो रहा था वो हुआ। ऑर्डर उस वक्त ख़त्म हो गया जब अफ़गानिस्तान के में उन्होंने लार्जेस्ट बॉम्ब गिराया, और उसके बाद अमरीकियों का एक बड़ा उम्दा अच्छा तरीका है, पहले भूख बांटते हैं फिर खाना बांटते हैं। तो in Afghanistan, I used to go to Afghanistan every year and I was a part of the track to diplomacy. तो हमने वहाँ पे एक फूड स्टडी की थी, तो मुझे ऐसे बच्चे मिले थे जिन्होंने 2 साल में कभी गोश्त नहीं खाया था, उन्होंने कभी अंडा नहीं देखा था, उनके लिए मिल्क, दूध वो था जो माँ डाइल्यूट कर कर बहुत सारे बच्चों में बांटती थी। सो दैट वाज द लेवल ऑफ मेल न्यूट्रिशन दैट हैपेंड। तो फिर जाहिर है कि जब अमेरिका ने उनके साथ सब कुछ कर लिया तो फिर उनको याद आया कि अब उनको कुछ अच्छा करना चाहिए, तो उन्होंने वहाँ खाना गिराना शुरू किया, फूड ड्रॉप्स करते थे, एयर ड्रॉप करते थे खाना। तो फिर हमने जब उन बच्चों से बात की तो और लोगों से बात की तो उन्होंने कहा वो इतना न्यूट्रिशनली रिच खाना होता था, बिस्किट्स होते थे कि हमारे बच्चे तो उसे खा के बीमार हो जाते थे।
उनको तो कभी इतनी न्यूट्रिशन मिली ही नहीं थी, और फिर वो उसको जलाते थे हाथ सेकने के लिए. सो दिस इज़ द डिस्कनेक्ट दैट एग्जिस्ट. अभी भी जो हमें गज़ा से ख़बरें आ रही हैं, हाउ मेन आर रेप्ड, हाउ वीमेन आर रेप्ड, हाउ दोज आर कॉट ऑन कैमरा, how they are made to parade naked in front of their children, how women are made to parade naked in front of their children. All of this is happening while we are sitting and talking here. So there is no order. The only question is that we moved on to a world where there is a lot of disorder, but also perhaps a very pertinent question today is that who is going to survive this disorder? और what makes you survive this order? इस वक्त पूरी ईरान की जंग किस बात पर टिकी हुई है? ईरान की जंग टिकी हुई है कि न्यूक्लियर वेपन से शुरू हुई थी ना, और बहुत सारी चीज़ें उसके पीछे. उन्होंने कह दिया था कोई 7 साल पहले हम 5 मुल्कों को विल टेक आउट 4 कंट्रीज. दिस वाज एन अमेरिकन जनरल. वो कौन था? लिबिया था, इराक़ था, सूडान था, सीरिया था. अभी जो बाकी रह गए हैं उसमें इजिप्ट है, उसमें ईरान है. एक बहुत फेमस आपको याद है कॉन्वर्सेशन हुई थी या मीटिंग हुई थी बिटवीन द इजरायली प्राइम मिनिस्टर एंड द इंडियन प्राइम मिनिस्टर 2 दिन पहले इस जंग के शुरू होने से. वहाँ पे उन्होंने कहा कि एक अलायंस ऑफ हेक्सागन्स है जो दुनिया में अमन लाएगी, और उन्होंने कहा कि जो राइजिंग शिया रेडिकलिज्म है उसको हमने खासा ख़त्म कर दिया है, प्रॉक्सीज ख़त्म कर दिए हैं, ईरान इज़ द लास्ट बुलवर्क. और उसके बाद राइजिंग सुन्नी रेडिकलिज्म. और वो राइजिंग सुन्नी रेडिकलिज्म क्या है? वो राइजिंग सुन्नी रेडिकलिज्म में जिन कंट्रीज़ का नाम लिया गया उसमें तुर्किया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान. अब इसको जो वर्ल्ड ऑर्डर है और जिस वक्त हो रहा है वहाँ ज़रा फिक्स करने की कोशिश कीजिए. अगर ईरान की हुकूमत तबाह हो जाती है, निकल जाती है, हम शिया सुन्नी बन जाते हैं, अच्छा हुआ चलो जा रहे हैं, थियोलॉजी है फलां टुमा. फिर ईरान में अगर प्रो अमेरिकन और प्रो इजरायली हुकूमत आएगी तो वो अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में क्या करना चाहेगी? और फिर अगर अफ़गानिस्तान और ईरान होस्टाइल बॉर्डर्स होंगे तो जो इस वक्त एक बहुत बड़े मुल्क ने जिसका नाम इंडिया है उसने एक ऐसी चॉइसेस की जो हमें समझ में नहीं आती. वो चॉइस ये की कि उसने, मैं उसको कहती हूँ कि दे टुक वेलवेट डिवोर्सेस. सो दे टुक अ वेलवेट डिवोर्स फ्रॉम ईरान, दे टुक अ वेलवेट डिवोर्स फ्रॉम सोवियत यूनियन एंड परहैप्स रशिया, एंड दे कन्वर्ज्ड विद द वेस्ट एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स विद Israel. India, Israel. Hindutva is a lot of what Zionism is. बहुत प्लेबुक बिल्कुल एक जैसी है. तो ये चॉइसेस क्या इंडिया बेवकूफ़ी में कर रहा है या दे आर इंटेलिजेंट चॉइसेस? एंड दे आर इंटेलिजेंट चॉइसेस बिकॉज दे रेफर टू द ऑर्डर दैट्स गोइंग टू इमर्ज और द ऑर्डर दे इमेजिन और वांट to emerge. पीछे चले जाओ 1 मिनट. So the पीछे जाओ बच्चा. The international order is undergoing changes of a magnitude not seen since 1945. Changes तो हो रही हैं. Order आया, कैपिटलिज्म बढ़ा, ग्रीड ड्रिवन कैपिटलिज्म हो गया. फिर उनका यार इसमें बहुत जूते पड़ रहे हैं ग्रीड ड्रिवन कैपिटलिज्म पे, तो हम उन्होंने एक नई बड़ी उम्दा टर्म निकाली. मैं बेंटले यूनिवर्सिटी में थी तो उन्होंने कहा कि कॉन्शियस कैपिटलिज्म यानी बाज़मीर कैपिटलिज्म. ये बाज़मीर कैपिटलिज्म क्या है? सो दो नई नई पैकेजिंग्स में वो हमें कंट्रोल ही बेचते रहे और नए नए पैकेजेस में हम कंट्रोल ही ख़रीदते रहे. और आज भी बहुत खुश हैं कि वी आर इन गुड स्पेस विद यूनाइटेड स्टेट्स. ट्रंप तो अपने साथ गुड स्पेस में नहीं है अमेरिका में, हमारी गुड स्पेस का क्या करेगा यार? सो द पॉलिटिक्स, पीछे जाएंगे हम थोड़ा सा. हाँ, इसके बाद सो दिस इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर. ये थोड़ी सी समझिए इंटेलेक्चुअल बात है, लेकिन मुझे लगा कि आप इसको देखिए. हमें 2 तरह की दुनिया का पता है. यूनिपोलर दुनिया जो बहुत अरसे से सिर्फ अमेरिका ताकतवर है. देन वी हैव अ बाइपोलर वर्ल्ड जिसमें 2 सेंटर्स ऑफ पावर थे, सोवियत यूनियन और अमेरिका था. फिर सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया. अब शायद एक, बहुत शुक्रिया,
फिर एक बाईपोलर वर्ल्ड थी, और अब हम सब जो कह रहे हैं कि अब शायद कोई मल्टीपोलर वर्ल्ड है, कई सेंटर्स ऑफ पावर हैं, अमेरिका है, इंडिया है, चाइना है, रशिया है, परहैप्स यूरोप भी है, बट इट्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। मुझे एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के बारे में आपसे एक बहुत ख़तरनाक बात कहनी है, और मैं आगे जाके आपको अपनी प्रेजेंटेशन में बताऊंगी। जब जब दुनिया मल्टीपोलर हुई है, जब जब आलमी जंगें हुई हैं, दैट्स प्रूवन। मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी। पीछे जाओ एक मिनट प्लीज, आई एम सॉरी। शेपिंग डायमेंशंस। अच्छा, ये वाली जो साइड है ना, ये देखो, इंस्टीट्यूशंस भी तबाह हो गए, नॉर्म्स भी खत्म हो गए, वैल्यूज भी खत्म हो गई, कोई नॉर्म्स नहीं रहे ना, जंग का भी कोई तरीका कार नहीं रहा। वो कहते थे जंगल का भी एक कानून होता है, हमारे पास अब कोई कानून नहीं। इसी तरह नॉर्म्स नहीं है, इसी तरह वैल्यूज नहीं है, इसी तरह इदारे नहीं हैं। मतलब यूनाइटेड नेशंस कह रहा है मैं कोलैप्स हो जाऊंगा क्योंकि अमेरिका पैसे नहीं दे रहा, अमेरिका कह रहा है वही करो जो मैं कह रहा हूँ वरना तुम बेशक तबाह हो जाओ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सेम गोज फॉर नेटो। सो इंस्टीट्यूशंस गिर रहे हैं, और जब पहले इंस्टीट्यूशंस इदारे गिरते हैं, फिर रियासतें गिरती हैं, हुकूमतें गिरती हैं, रियासतें गिरती हैं, और फिर सिस्टम्स गिरते हैं, फिर ऑर्डर्स गिरते हैं। लेट्स गो फॉरवर्ड। सो द पॉलिटिक्स ऑफ मल्टीपोल्स, अ मल्टीपोलर वर्ल्ड इज इमर्जिंग। ये हम कोई 2009 से सुन रहे हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड इमर्ज हो रही है, मल्टीपोलर वर्ल्ड इमर्ज हो रही है। मल्टीपोलर वर्ल्ड हमारा और आपका कर क्या रही है? अब हमें डील करना पड़ता है अमेरिका से भी, चाइना से भी, रशिया से भी, यूरोप से भी। सो जो मिडिल पावर्स हैं, जो हमारे जैसे ममालिक हैं, उनके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो वो करें जिसको हम मेरी ज़बान में या आईआर की ज़बान में कहते हैं हेजिंग, यानी जो उनके पास है उसको इस्तेमाल करें अपना मकसद निकालने के लिए। क्योंकि अब हम इसी दुनिया में हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया इस्तेमाल कर रहा था अपनी दोस्ती रशिया से भी और अमेरिका से भी सस्ता तेल ख़रीदने में। फिर इंडिया को डांट पड़ी, अमेरिका से सस्ता तेल बिकना बंद हो गया, लेकिन फिर अमेरिका ने खुद ही सस्ता वो तेल खोल दिया। बहालत जंग, जब वो जंग में है रशिया से और ईरान से, तो उसने कहा कि ईरानी तेल भी बिक सकता है और रशियन तेल भी बिक सकता है। रशियों ने अरबों रुपया डॉलर्स कमा लिए, ईरान ने सालों में इतने पैसे नहीं कमाए जितने पिछले दिनों में कमा लिए। तो हम शायद एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ नहीं बढ़ रहे, हम शायद एक मल्टीप्लेक्स वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। जहाँ ज़रूरत हुई इसको साथी बना लिया, जब ज़रूरत हुई इसको साथी बना लिया, इससे इसके लिए दोस्ती कर ली, इससे इसके लिए दोस्ती कर ली। सो आई थिंक दैट इज़ द काइंड ऑफ वर्ल्ड यू आर मूविंग टुवर्ड्स। अगर मैं आपसे जो बात मैं आपसे कह रही थी, द लास्ट मल्टीपोलर सिस्टम्स रिजल्टेड इन 17th सेंचुरी में जब दुनिया मल्टीपोलर थी तो 30 years रिलीजियस वॉर हुई थी। प्रोटेस्टेंट्स लड़ पड़े, स्पेन, फ्रांस, होली रोमन एम्पायर, ऑल ऑफ दैट प्रोबेबली हैपेंड। फिर 20th सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर 1 हुई 1914 टू 9। फिर उस वक्त भी दुनिया मल्टीपोलर थी, यूके था, जर्मनी था, फ्रांस था, रशिया था, ऑस्ट्रिया और जर्मनी थी। ठीक है, अच्छा, इसकी वजह से कोई ना कोई फ़ायदा भी उठाता है। तो जब पूरा यूरोप लड़ रहा था तो अमेरिका ताकतवर हो रहा था और फिर वो दुनिया पे काबिज़ हो गया। अब देखना ये है कि पीछे चले जाओ प्लीज़ बेटा। फिर जब पूरा अमेरिका लड़ रहा है, मैं टाइम पे ख़त्म कर दूँगी वादा। अब जब अमेरिका लड़ रहा है, डायरेक्टली जंग में इन्वॉल्व है, तो जब ये मतलब हम ये सोचने को तैयार नहीं है ना कि अमेरिका तबाह होगा और ख़त्म होगा। लेकिन यार 70 साल की तो कहानी है, इट्स 70 years एंड इन इंटरनेशनल रिलेशंस देयर इज़ अ साइकिल। 70-80 साल बाद छुट्टी हो जाती है जैसे हमारी आपकी छुट्टी हो जाती है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे दिमागों में ये इनविंसिबिलिटी है। बिल्कुल उसी तरह जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी तो इन ताकतों के लिए इनविंसिबिलिटी थी, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो हिटलर को अपनी इनविंसिबिलिटी का यकीन था कि मैं ख़त्म नहीं हो सकता। एंड देन ऑफ कोर्स द ग्लोबल वॉर अगेन, अलाइज एंड दी एक्सिस, ये आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई। अब आगे चले जाओ। सो अभी जो मल्टीपोल्स आइडेंटिफाइड होते हैं यूजुअली वो यूएस है, यूरोपियन यूनियन है, रशिया है, चाइना है और इंडिया है। लेकिन मैंने इंडिया को नीला बनाया और बाकी सबको एक रंग का हरा बनाया है और चाइना को एक रंग का हरा बनाया है, क्योंकि ये वो चेस बोर्ड है जिस पे हमारा पावर ऑर्डर डिटर्मिन होगा अगर हुआ तो। आगे चले।
today's alignments closely resemble pre-World War I marriages of convenience. इससे तेल मिल रहा है, इससे दोस्ती कर लो, इससे पैसे मिल रहे हैं, इससे दोस्ती कर लो, इससे आर्म्स मिल रहे हैं, दोस्ती कर लो, अमेरिका के साथ दिखना अच्छा लगता है लेकिन चाइना की ज़रूरत है, ठीक है, और सऊदी अरब मुस्लिम मुल्क है तो वो लोगों में मुल्क में बिकता है, वगैरह वगैरह वगैरह, और रेमिटेंसेस आती हैं और आप इतनी बहुत सारी चीज़ें ढूंढ सकते हैं. सो इस वक्त जो आपको अलायंसेस नज़र आती हैं वो मैरिजेस ऑफ कन्वीनियंस हैं. इंडिया वेस्टर्न ब्लॉक के साथ अलाइंड है लेकिन तेल आज भी रशिया से ख़रीद रहा है, ठीक है. सो दीज आर मैरिजेस ऑफ कन्वीनियंस, अलायंसेस, नो रियल रिलेशनशिप्स. दुनिया में वैसे भी नहीं होती बट मोर सो ऐसी अलायंसेस किस वक्त थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले. सो मल्टीपोलर, और ये लफ्ज़ मैंने आपके लिए इंट्रोड्यूस कर रही हूँ लेकिन इसकी अब बहुत बात होगी. और जैसे कॉम्प्लेक्स से हमने कहा है मल्टीप्लेक्स, यानी जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बहुत ही मुश्किल हो गया. इट्स बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू फॉलो. इसमें एक कॉम्प्लेक्सिटी का एलिमेंट आ गया है. तो और हम किस दुनिया में रह रहे हैं? हम पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 ऑर्डर में रह रहे हैं. वहाँ क्या हो रहा है? कोऑपरेशन शिफ्टिंग है, पावर रिकॉन्फ़िगरेशन है, और ये शायद आकाश है एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का. अगर वो आया, हो सकता है हम इसी डिसऑर्डर में चलते चलते निकल लें, क्योंकि अगर न्यूक्लियर डायमेंशन इमर्ज होती है, और सिर्फ ईरान रिलीजन नहीं इन्वोक कर रहा, अमेरिका भी रिलीजन इन्वोक कर रहा है, इज़राइल भी रिलीजन इन्वोक कर रहा है. वो कल जो उनकी स्पिरिचुअल हीलर थी उन्होंने कहा ट्रम्प जीसस है. So that's what she said. That's exactly what she said. He said आपकी ज़िंदगी देख के मुझे जीसस की ज़िंदगी के उसमें रुख नज़र आता है. और जब वो बातचीत कर सकें तो प्रेसिडेंट ट्रम्प उनके कपड़ों की तारीफ कर रहे थे. दिस इज़ प्रेसिडेंट ट्रम्प. मैं आपसे एक लफ्ज़ इसमें एग्जैजरेशन नहीं है, एक लफ्ज़, ठीक है जनाब. सो ये जो इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑर्डर इस वक्त हम जिसकी तरफ जा रहे हैं वो शायद मल्टीपोलर नहीं है, वो मल्टीप्लेक्स है. मल्टीपोलर कह के हम अपनी जान छुड़ाते हैं. हमें लगता है बस ये वी लाइक टू अंडरस्टैंड, वी लाइक टू सिंप्लीफाई थिंग्स. आसान हो जाता है ना समझना, तो हम कहते हैं कि ये मल्टीप्लेक्स है. आगे चले सर. सो मल्टीप्लेक्सिटी डिस्क्राइब्स अ मोर डिसेंट्रलाइज्ड, डाइवर्सिफाइड एंड मल्टी डायमेंशनल वर्ल्ड. अंग्रेज़ी के लफ्ज़ हैं लेकिन इसका मतलब ये है कि ताकत बिखर गई है. किसी के पास मुकम्मल ताकत इस वक्त नहीं है, और हमें अफ़गानिस्तान से अमेरिका का निकलना और ईरान में शदीद तरीन ताकत इस्तेमाल करके ईरान को ना तोड़ना इस बात की अकास है कि किसी के पास कामिल ताकत नहीं है. ये इसी तरह इज़राइल क्या गज़ा पे काबिज़ हो गया? क्या हमास तबाह हो गई? क्या लेबनान में गए हिजबुल्लाह तबाह हो गई? क्या हुटीज़ तबाह हो गए? एसिमेट्री ऑफ पावर है, कमज़ोर छोटी छोटी एंटिटीज़ हैं, एक छोटा सा मुल्क ईरान उन्हें सपोर्ट करता है, पर ये खड़े हैं और फिर रिवाइव हो रहे हैं. ऐसा आप मानते हैं? ऐसा हो रहा है? सो वी नीड टू थिंक व्हाट इज़ हैपनिंग. यस प्लीज़. The question is that you see, like we are now talking about diversity all around, and this is the diversity of power we are talking about. Don't you think that it can bring a better order than making 1, 2, or a few, powers which can control the world? अच्छा, आप जिसको डाइवर्सिटी ऑफ पावर कह रही हैं, मैं उसको डिफ्यूजन ऑफ पावर एंड कन्फ्यूजन ऑफ पावर कह रही हूँ. देखिए, डाइवर्सिटी जो होता है वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, लेकिन जो हो रहा है वो तो डिफ्यूजन है, डिसेंट्रलाइजेशन है, डाइल्यूशन है. और उस इटोपिया तक पहुंचने में अगर मैं आपकी बात सही मान भी लूं तो उसकी एश्योरेंस कौन दे रहा है? क्योंकि ग्लोबल ऑर्डर्स जब होते हैं किसी को दुनिया की एश्योरेंस देनी पड़ती है. हमारे पास एश्योरिंग पावर्स थी ना, सऊदी अरब था एश्योरिंग पावर था, अमेरिका था एश्योरिंग पावर था, बाइपोलैरिटी थी, तुम ये करोगे तो मैं वीटो करूँगा, मैं ये करूँगा तो तुम वीटो करोगे. आज भी यूनाइटेड नेशंस में एक बड़ा ज़बरदस्त वीटो हुआ है.
a fantastic veto happened in the United Nations. और वो क्या वीटो है किसी को पता है? चले मैं बताती हूँ आपको. वो वीटो ये हुआ कि गल्फ स्टेट्स ने, मुस्लिम स्टेट्स ने, जो अभी कोई बात कर रहा था मुझसे मुस्लिम स्टेट्स क्या करेंगी, गल्फ स्टेट्स ने ये रेजोल्यूशन पास किया कि हम हुर्मस को, स्ट्रेट ऑफ हुर्मस पता है ना, उसको बाय फोर्स खुलवाते हैं. यानी हम सब मिलकर अपनी अफवाज भेजते हैं और बाय फोर्स उसको खुलवाते हैं. किसने वीटो किया? चाइना, रशिया एंड फ्रांस. एक भी मुसलमान मुल्क नहीं. सो यू सी व्हाट इज हैपनिंग. कोई, मैं तो हमेशा से ये बात कहती थी, और मैं जब कराची यूनिवर्सिटी में ये बात कहती थी तो लोगों ने मुझे काफिर वाफिर भी कह दिया था, बल्कि ज्यूस का एजेंट भी कह दिया था, बिकॉज मैं कहती थी देयर इज नो उम्मा. उम्मा मेरी और आपके इख्तरा है, जहनी इख्तरा है. कुछ उम्मा नहीं है, इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट है. अगर ये सेल्फ इंटरेस्ट ना होता तो अमरीकी इतने अड्डे मिडल ईस्ट में इस वक्त ना होते. चलें जी. सो दिस इज़ मल्टीपोलैरिटी. जो अगर ताहिरा आपकी थोड़ी सी इससे क्लैरिटी हो जाए ना, मल्टीपोलैरिटी में पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मल्टीप्लेक्सिटी में सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं. मुझे लगता है इस वक्त हमारे सिस्टम्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हो गए. स्टेट्स होती हैं, स्टेट्स और नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं. इस वक्त नॉन स्टेट एक्टर्स जंग कर रहे हैं भाई. हिजबुल्लाह नॉन स्टेट, हमास नॉन स्टेट, हुटीज नॉन स्टेट. कंपटीशन होता था मल्टीपोलर में, कोएग्जिस्टेंस एंड ओवरलैप होता है. चाइना भी तेल बेचता है और रशिया भी तेल बेचता है, लेकिन इस वक्त मिलकर पूरी दुनिया को वो चूना लगा रहे हैं. That's exactly what they're doing, right? So there is this, so this is coexistence and there is overlap. और जब why, and this did not happen by the way now. Iran was chosen as a pillar of Chinese South architecture way back. इस वक्त चाइना में चाइना ने ईरान में पाकिस्तान से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और इन नॉट सो मैनी वर्ड्स रशिया ने बताया है कि अगर आप न्यूक्लियर गए ईरान पे तो जवाब हम देंगे. सो यू नो व्हाट्स हैपनिंग. सो देयर इज अ लॉट ऑफ मल्टीप्लेक्सिटी एंड अपेरेंटली नए पोल्स इमर्ज हो रहे हैं. बट मैं उनको पोल्स नहीं कहना चाहती हूँ, मैं उसको ये कहना चाहती हूँ. I think it's coexistence and overlap. You scratch my back, I scratch my back. इस मैरिज में मेरा फ़ायदा चल रहा है, मेरा कोई फैज़ बन रहा है इधर. ठीक है. Then multiple parallel systems. यहाँ पे एक सिंगल सिस्टम था. इस वक्त किसने मल्टीपल पैरेलल सिस्टम की दाग बेल डाली? बोर्ड ऑफ पीस तो अंकल ट्रंप ने बनाया, जो अब कलैप्स हो गया, बट इट वाज अ पैरेलल सिस्टम. इसी तरह इब्राहिम एकॉर्ड्स, इस तरह bypassing mainstream institutions and systems was done by design by a superpower. And then of course जो अब नई चीज़ है वो है tech firms, states and global institutions. अभी तो तेल बंद किया है, अगर समंदर के नीचे इंटरनेट के तार काटे ना, फिर मुझे और आपको समझ में आएगा. Seriously, that's possible. That's an option. और हम लोग तो बहुत पहले से कहते थे जी. ईरान has also threatened with that. जब हम, क्योंकि हम तो बेचारे मकाले लिखते हैं, हमारी कोई सुनता तो नहीं ना. आजकल हमसे बात कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों को खुद समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है. So we used to say that the third world war is going to happen on the seas. It is the seas. हुर्मुज़ बंद कर दिया, अगर बंद, क्या नाम है उसका, हाँ नहीं, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ नहीं, हाँ रेड सी में मंदुल अदब, हाँ विच इज टीयर्स ऑफ समथिंग कहते हैं ना अंग्रेजी में उसको. अगर उसको बंद कर दिया, हुर्मुज़ से सिर्फ 20% तेल गुजरता है, वहाँ से 80% गुजरता है. थिंक अबाउट इट. और हुटीज़ का क्या जाता है, ना उनके पाँव में चप्पल है, ना उनके बदन पे कपड़ा है, उनको कोई डर नहीं लगता बम फेंक के खुद भी मर जाने में. सो यू ब्रिंग पीपल टू अ पॉइंट वेयर they are ready. What is suicide bombing? कभी सोचा है सुसाइड बॉम्बिंग क्या होती है? सुसाइड बॉम्बिंग ये होती है कि आप इतने जच हो चुके होते हैं दुनिया से कि आप सोचते हैं कि आई विल एक्सप्लोड माई सेल्फ टू अचीव समथिंग. इस वक्त ऐसे 20 हुटीज फिर रहे हैं
और शायद जितना जुल्म इन्होंने गज़ा में किया है, पता नहीं कितने ऐसे गज़न्स हैं। आई मीन अभी तो हमें पता चलेगा कि गज़ा में क्या हुआ था। ये सिर्फ एक बच्ची की कहानी नहीं है कि उसको गाड़ी में मरता छोड़ा था। इन्होंने बाय AI यूज़ की है, बाय डिज़ाइन डेमोग्राफी वर्कआउट करने के लिए, और वहाँ ये फ़ैसला किया है कि ये तमाम 17 साल से कम उम्र लोगों को ख़त्म करेंगे। दिस इज़ they've used AI, और बाय द वे अब वो AI जो है ईरान में भी यूज़ किया है। दैट्स व्हाट आई हियर हो रही है। सो more multiplex, global cooperation, less hegemonic और US centered। ये जो मैं कह रही हूँ ना, yes US centered, मेरा ख्याल है this is going to become a determining factor of the new politics that you will probably see. A world not defined by the decline of America, but rather the rise of everyone else. So Russia is rising, so China is rising, so Iran is rising, so Saudi Arabia is getting very sick of its dependence on the United States of America. The Gulf states are saying we have so much and we have nothing just because we are getting sucked into something else. Israel has its own agenda of becoming a greater Israel and says it will not stop till it achieves that, because then there are the Epstein files, there is corruption charges against Netanyahu, he wants to win the next election, so on and so forth. So new power centers are emerging, fundamentally reshaping global dynamics. Not global order, but perhaps global dynamics. China, economics and technological ascendancy, आप मानते हैं इस बात को? Economically तो China, और वो अभी भी जब आप सब लड़ रहे हो तो किसी जंग का हिस्सा नहीं है। उसने तो अपने ऑयल रिजर्व्स बढ़ा लिए, ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहा है, और वो सोच रहा है कि मैं कैसे वाइबल रहूँगा इकोनॉमिकली। जो रोज़ का ख़र्चा इस जंग पर इस वक्त अमेरिका का और इज़राइल का हो रहा है, अमेरिका कह रहा है कि अब मैं न्यूट्रिशन नहीं दे सकता, मेडिकेयर नहीं दे सकता, तालीम नहीं दे सकता अपने लोगों को। वो अपने लोगों से कह रहे हैं आप मुझसे मेडिकेयर क्यों मांग रहे हैं? आई एम इन अ वॉर। रशिया assertive foreign policy and energy influence। अब इस जंग से जितना फ़ायदा रशिया का हुआ है किसी का नहीं हुआ। और टाइमिंग देखें ना, ये वो वक्त था जब रशिया ये सोच रहा था कि वो अपनी यूक्रेन के साथ वॉर वाइंड डाउन करे, क्योंकि पैसे नहीं थे। ओवरनाइट इट हैज़ मेड मिलियन ऑफ डॉलर्स, और अब वो सोच रहा है सिर्फ यूक्रेन या और भी। Yeah, so that is the thinking in Russia now, because they're making so much money. By the way, पाकिस्तान में जितने भी हमारे पैसे बढ़ा लिए, मैं भी आपको बताऊंगी हम भी कितने पैसे बना रहे हैं। We're making a lot of money. Significant regional and global player, कुछ कह रहे हो बेटा? Growing strategic relevance in South Asia and growing global diplomatic relevance. Pakistan is back in the game. Pakistan is back in the game. Pakistan will remain in the game. Pakistan is relevant to Pakistan. It's critical for Iran that Pakistan remains neutral. It is critical for Russia and China that Pakistan acquires the space that it has acquired for itself. And US is thinking, is it worth it to engage Pakistan into this, or to keep Pakistan as a trusted neutral entity in this region that I can use? थोड़ी सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है लेकिन समझ में आ रहा है। बट अमेरिका सोच रहा है कि मैं इस वक्त पाकिस्तान को अपनी तरफ पूरा खींच के अपना ज़्यादा नुकसान तो नहीं कर लूँगा। अगर पाकिस्तान एक ऐसी एंटिटी के तौर पे काम करता है जिसको ईरान भी ट्रस्ट कर रहा है, जिसको रशिया भी ट्रस्ट कर रहा है, जिसको चाइना भी ट्रस्ट कर रहा है, ऐसा पाकिस्तान क्या मेरे लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं है? सो आई थिंक दैट इज़ द थिंकिंग, और हमें वी शुड बी कोएग्निजेंट ऑफ दिस थिंकिंग। हम अमेरिका के साथ क्या थे? हम अमेरिका के मोस्ट बॉम्ब्ड अलाए हैं, मोस्ट सैंक्शनड अलाए हैं, नॉन नेटो अलाए हैं, मोस्ट अलाइड अलाए हैं। ये 5 स्टेटस हमने एक्वायर किए 50 सालों में। So this is what Turkey leveraging its geostrategic position, balancing NATO with Eurasia and Middle Eastern ties. Turkey में जब से ये Islamic influence आया है ना, Europe sees it as the naughty boy of Turkey. They don't trust it.
because of Erdogan and the rising Islamic influence. So Turkey, जब बात होती है bringing down states की, तो Turkey की भी बात होती है, सऊदी अरब की भी होती है, इजिप्ट की भी होती है और पाकिस्तान की भी होती है. उनका ये ख्याल है कि सऊदी अरब, इजिप्ट और पाकिस्तान फिर भी उनके काबू में, टर्की उनके काबू में नहीं है. हालांकि टर्की इज़ द ओनली कंट्री दैट रिकग्नाइजेज इजराइल. इजिप्ट भी करता है. नाउ द ग्लोबल साउथ increasingly rejects Western-centric governance models advocating for diverse approaches to international relations. कि एक्चुअली में हमेशा होता है, इट बॉइल्स डाउन टू मनी. सो जो असल बहस जंग है ना, वो पेट्रो डॉलर्स हैं, और वो पेट्रो डॉलर्स अमेरिका से को पहुंचते हैं मिडल ईस्ट से, गल्फ स्टेट से, सऊदी अरब से. हुर्मुज़ में सबसे ज़्यादा बात क्या चुभ रही है? वो कहता है निकलो और यॉन्स में पैसे दे दो. सो इट्स द करेंसी, इट्स द चेंज देयर that is biting the United States. Rather than a full retreat, globalization first evolved into slowbalization. Slow हो गई ना globalization, अब तो और ज़्यादा हो गई, लेकिन slowbalization हो गई है, and it's now moving towards re-globalization, which will be led by Asia and the global South nations. This is the tectonic shift that is being resisted to thin nail. चाहे वो करेंसी फ्रंट पे हो, चाहे वो दूसरे फ्रंट्स पे हो. फिनिश्ड? चलो ख़त्म कर लेते हैं. इसको ख़त्म करो, इसको आगे ले जाओ. लेट्स फिनिश इट. और आगे ले जाओ, ये रोक लो, पीछे जाओ. की क्वेश्चंस कर लें. यूरोप टिल्टिंग ईस्ट, फॉल्ट लाइंस अहेड. यूरोप इज टॉर्न बिटवीन US लेड सिक्योरिटी गारंटीज एंड चाइना लिंक्ड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़. और ये बहुत अरसे से हो रहा था. फ्रांस टिल्ट कर रहा था, जर्मनी टिल्ट कर रहा था. दिस फ्रेगमेंटेशन रिस्क अ पोस्ट अमेरिकन मल्टी ब्लॉक ऑर्डर. जितने थिंकिंग सेंटर्स हैं वो पोस्ट अमेरिकन ऑर्डर की बात कर रहे हैं. ऑल ऑफ देम आर टॉकिंग अबाउट इट एक्सेप्ट विथ अस. मैं इसको ख़त्म कर रही हूँ बेटा. सो व्हाट आर द की क्वेश्चंस? इज द फॉल्ट लाइन बिटवीन यूरोप एंड द US वाइडनिंग? आई लीव इट टू यू. Is Europe still Atlanticist or drifting towards an eastern balance with China and Russia? The transatlantic relationship no longer matters. इनमें से कोई भी बातें मैं नहीं कह रही हूँ, ये थिंक टैंक्स हैं, ये हमारे अंकल ट्रम्प हैं, ये मज़े मज़े की बातें करते. तो टाइम नहीं है, वरना मैं आपको पढ़ के सुनाती. So this is about the United States. फिर उस स्लाइड पे छोड़ देना. The United States status as a global leader over the past 7 decades has been largely built on its wealth. Wealth थी उनके पास, power थी, credibility थी. However, in the aftermath of the Ukraine crisis and the Israel-Palestinian war, now the war with Iran is now faltering on all 3 fronts. Wealth में उनकी कमी हो रही है, कर्जे उनके बढ़ रहे हैं, वो सारी दुनिया से कह रहे हैं अल्लाह का वास्ता तेल मुझसे ख़रीद लो. और पावर में के ऊपर सवालिया निशान उठ गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान अमेरिकन लेजिटिमेसी के ऊपर उठ गया है. हाउ लेजिट, हाउ मॉरल, हाउ एथिकल, समथिंग दैट बिल्ट अप एवरीथिंग ऑन इज अंडर क्वेश्चंस. इट इज़ फेलिंग इट्स ओन पीपल, इट इज़ फेलिंग द वर्ल्ड बाय टोइंग द इजरायली लाइन. ख़त्म हो गया, कुछ और है? बस ठीक है, अब हम आप चाह रहे हैं हम ख़त्म करें. ये न्यू कोल्ड वॉर आगे. द न्यू कोल्ड वॉर इज़ अ स्ट्रैटेजिक कंसेप्ट दैट एक्वायर्ड फॉर्मेलिटी विद द इशुएंस ऑफ द कम्युनिके इन 2022. आई थिंक 2026 कोल्ड वॉर तो रही नहीं ना जी, इट्स बिकम अ हॉट वॉर. ठीक है ना जी. सो ये राइज ऑफ मिडल पावर्स हैं. पॉपुलेशन 45% है हमारे पास, ग्रोथ 60% है, 10 वी आर इन इकोनॉमिक पावर. आगे आ जाओ. So states ally because of cold calculations of threats and opportunities, not sentimental attachments or common ideology. And when that calculation alters, so do alliances. So you will see a lot of new alliances in the days to come. I hope you enjoyed it. This is it. Thank you so much. Let me read the conclusion. The current global liberal order is an advanced state of meltdown, and as the world rapidly shifts from a unipolar to a multipolar reality, the international system itself
is exposed to profound instability. तो इस वक्त हमारे पास जो वाहिद चीज़ है कि we are in a flux, unstable world order है, geopolitical transitions हैं, और the trajectory from a protracted Israel-Palestinian conflict, इसराइल और पैलेस्टाइन में भी अमेरिका पीछे था, लेकिन अमेरिका इस तरह जब खुल के सामने आया है ना, तो फिर दुश्मन भी खुल के सामने आते हैं. सो अब ईरान के पास जस्टिफिकेशन है ये कहने की कि वो मिडल ईस्ट में, गल्फ स्टेट्स में, सऊदी अरेबिया में इरानियन अमेरिकन इंटरेस्ट को हिट करेगा. दिस इज़ बिकॉज US इज़ इन द वॉर डायरेक्टली. So the world is of course more fragmented, contested, and there's a multiplex global system. Thank you so much. Thank you. अब ये क्या मैं कुर्सी पे बैठ जाऊँ, मैं थक गई. Can you give me a chair, please? जी जनाब, मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि बहुत दिनों बाद मैंने क्लास ली है. Yeah, I think बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था, and I'm so happy Fanoon is doing this, especially with you. You're a total natural in the classroom, और स्टूडेंट्स भी आपके पास बहुत अच्छे थे, मैंने ये देखा. दे न्यू सो मच, बड़ी तैयारी से आई थिंक आए थे. सो मैं क्वेश्चंस लेने से पहले ये वजाहत कर दूँ. द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ आयशा सलीम. सो अगेन a lot of people have joined late. We are offering 2 internships with Dr. Huma Bakai today. आप सेशन से पहले भी इनके बारे में जानते होंगे, but you can see the brilliance right now. So we are offering 2 internships with Dr. Huma Bakai right after the session based on your questions. So the graduate internship and an undergraduate internship, and the graduate internship is paid. If you have not put your name on the question sheet, please approach Shazen. Or you can raise your hand and even tell me that you are intending for a internship. But there are very few, there are lots of people, but very few names on the sheet. So if you raise your hand, then let me know whether you're a graduate student or an undergraduate student, and if you are interested in the internship. So जब तक आयशा सलीम अपना क्वेश्चन पूछती हैं, please make sure that you put your name on the sheet. आयशा सलीम. जी आयशा जी. जी मैम, आपने जैसे आपने एलैबोरेट भी किया. मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान का मतलब क्या रोल है इस जंग के उसमें, और मतलब पाकिस्तान भी तो अफेक्ट हो ही रहा है ना. मतलब यानी कि जोग्राफिकली देखें तो अमेरिका तो दूर है, और पाकिस्तान मतलब यानी हम जैसे पड़ोसी हैं ईरान के, तो कैसा अफेक्ट हो रहा है, आप और इसको किस उसमें देखती हैं? Actually, you know, I'm a huge critic of how Pakistan has carried itself, but I think this time Pakistan has done something good. For example, we take the name of Washington and Beijing in one breath. And because we're doing it for a long time, also the balance between Tehran and Riyadh, we've been doing it. And you know, I'm just coming back from a talk on Zulfikar Ali Bhutto. उनकी कल बरसी है, तो उनकी एक सिंध गवर्नमेंट की बहुत पोलिटिसाइज्ड टॉक थी आर्ट्स काउंसिल में. अमीना मेरे साथ थी वहाँ पे. बट यू नो इट्स इंटरेस्टिंग कि भुट्टो ने ये बात 70s में कह दी थी कि हमें वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से बाहर निकलकर स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस हासिल करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी. इस वक्त ये बात डिज़ाइन नहीं है कि पाकिस्तान वॉज अ पार्ट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन दैट गॉट फैक्टर्ड इनटू कॉन्वर्सेशंस. पाकिस्तान इज़, देखिए सऊदी अरब के साथ सिक्योरिटी पैक्ट है, अमेरिका के साथ ट्रस्ट लेवल्स हैं, ईरान के साथ ट्रस्ट लेवल्स हैं. ईरान इज़ परहैप्स ओनली, पाकिस्तान इज़ ओनली कंट्री दैट कैन टॉक टू ईरान. नो अदर कंट्री, नॉट इवन सऊदी अरेबिया, नॉट इवन तुर्की, शायद कतर. लेकिन कतर से ईरान बहुत वेरी है, क्योंकि जो निगोसिएशंस पे हमला हुआ था वो कतर में ही बातचीत हो रही थी ना. सो आई थिंक पाकिस्तान just emerges as a natural choice. So I hope Pakistan is able to maintain this. Will there be a cost? Cost तो हमने अफगानिस्तान वॉर की भी उठाई है, और खुदा ना खास्ता ईरान में इम्प्लोजन होता है तो हमारा उनसे भी बहुत लंबा चौड़ा बॉर्डर है. सो इट विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक, बट आई एम होपिंग वो चीज़ प्रिवेंट होगी. मैं ये बात शुरू में जब कुछ कम लोग आए थे तो मैं ये बात कह रही थी कि अभी हम बहुत खुश होते हैं, ईरान ने F-16 गिरा दिया, ईरान ने
तल अवीव में इतना हमला कर दिया। याद रखिए ईरान छोटा मुल्क है, 40 साल से सैंक्शंस में है और इस वक्त ईरान भी मुश्किल में है। ईरान ये चाहता है कि इतनी मुश्किल उठाने के बाद वो किसी डील के साथ बाहर निकल आए और बस वो इसकी कोशिश कर रहा है। अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि इतनी हार्ड पावर इस्तेमाल करें कि ईरान घुटनों पे आ जाए। बस ये इक्वेशन है, इतनी सिंपल। अब देखना ये है कि किसके अंदर कितना पेन लेने की ताकत है। True. और ईरान के लिए भी ये जंग स्ट्रेटेजिक है, लेकिन ईरान से ज़्यादा हमारे लिए स्ट्रेटेजिक है। Yeah, that's really true. So we have Imad Siddiqui from Habib University. Right. So when we talk about the shifting orders, we are seeing this new rivalry emerging between United Arab Emirates and Saudi Arabia, where they find themselves in opposing situations. I mean, when it comes to Yemen, it comes to Somalia, Libya, and it actually connects to the hexagon that you mentioned earlier on in your talk as well, right? So how do you see that going ahead, given that they do share a similar position when it comes to opening the Strait of Hormuz because of their own interests of oil and of course other economic interests? And then at the same time, how do we see Iran in this equation, given that Saudi Arabia signed a deal with Iran in 2021, negotiated by China? 2023. 2023. Yes. I beg your pardon. And then they also signed a deal with the Houthis as well, I think, and that was also negotiated by China, I believe. Okay. So the idea is that will Saudi Arabia take on that challenge of countering China like that, and that comes as a So surprise. I'm going to ask you another question. Yes, of course. Is it the street or the monarchy? I beg your pardon. Saudi Arabia is a monarchy. Yeah, Saudi Arabia is a monarchy. Gulf yeah. states are monarchies. Yeah, exactly. Bahrain has a king. Yeah. So who is scared of Iran? The street or the monarchy? Oh yeah, it has to be the monarchy, and we are seeing a lot of people rise up in Bahrain as well, given Bahrain. that the Shia population. Why? Because Bahrain is Shia population. What Exactly. happened in Iraq? In Iraq was a Sunni. Saddam Hussein Sunni the. Exactly. The rest of Iraq, and then the whole equation changed when US brought about this change. yeah, Right? exactly. So हम condition हो गए हैं बहुत सारी चीजें assume करने में, and because you're a student, I really want you to think about of a Saudi Arab that is not a monarchy, of a Bahrain that is not a kingship, Right. of a Gulf states that are not governed by a handful of elite. Right. And as we talk about diffusion of power elsewhere, this diffusion of power is also happening there. Maybe far less obvious and far less reported. Nevertheless, it exists. So, Iran was under sanctions, and the West was able to do to Iran what it did because all of these states were wary of Iran. Saudi Arabia hated the Houthis. Hezbollahs were hated by not just Israel but also Egypt and others. I know I was in Manama Dialogues 5 years ago. Iran was not, it's a Middle Eastern dialogue. Iran was not invited to the dialogue. But all they could talk about the whole day was Iran. I think that equation is changing, and look at the messaging that is coming out of Iran. Iran constantly targets the people. Even before Trump's speech, they released a letter to the people of the United States that we are not your enemy. And that is what they keep telling the Saudi Arabia and the Middle Eastern and the Gulf states. And Pakistan. Gulf states se bhi wo har waqt ek hi baat keh rahe hain. We have nothing against you. We will only target American interests or American entities you allowed to exist in your country when they are used against us. Just a little follow-up, given that you mentioned street and monarchy. Do we see an Arab Spring Part 2, or is that a far-fetched possibility right now? You know, I don't know. I really don't know. But I will not be surprised if it happens. Not in exactly the same way the way Arab Springs happened, but perhaps. तुम लोग सब मेरे कैंपस आ जाओ, हम लंबी गप चलाएंगे, हम ये बात नहीं करने दे रहे.
Yeah. I'll take questions later. Assalamu alaikum, ma'am. You need the mic. I can't hear you. I think beta. let's go with Burair, and then when your name is called, then you can pitch in. Burair, Yes, Burair. Assalamu alaikum, miss. Miss, what should smaller countries do? Countries who are not superpowers, so like Pakistan ho gaya, let's say Iraq, other countries that are smaller in size, smaller in stature. What should they do in this situation? Exactly can what they do? Iran is doing. What Iran is a small country No. under sanctions for 40 years. That's true. Under sanctions for 40 years, right? A small country not allowed to pursue a nuclear program. You know what did Pakistan and India do, by the way? We gate crashed the nuclear club, and we never signed the NPT. Iran is saying, I'm not going to sign the NPT. This is becoming a very, very survival of the fittest world. Fend for yourself world, very realist. You know, I went to Ukraine before this war, just before this war. And I was on a trade delegation. So I was speaking to them about improving trade with Pakistan. The minute my lecture ended, all the students wanted to ask me just one thing. How did Pakistan retain its nuclear program? Because Ukraine had trusted the West and given up on its nuclear program. Pakistan was pushed into a corner and promised the moon if it didn't become nuclear, after India became a nuclear power. Bhutto Saab, to his face, which said by Henry Kissinger, who was very fond of Bhutto, said to his face, we will make a horrible example of you and your country. They made a horrible example of Bhutto. Bhutto was murdered. He wasn't hanged. It was a judicial murder. But he did go through because he saw what was happening. So I think it has to be a very fend for yourself work, and also the multiplexity. You make alliances not on the basis of being with one bloc, but make alliances with several people based on what you require for them and what you can give to them. okay. Okay. Muhammad Hassan. No, we don't have time today. Muhammad You Hassan. guys come to my class, I'll have a We long will session do with that. you. No, I can't hear you. Okay, Miss, you just said a short while ago that if it still remains to be seen if it is relevant to the Arab Spring or not. But from what I see, it's I guess a side effect or a blowback of some sort of the Arab Spring, because still the Arab Spring has some relevance or another to this situation. Even if how long back it was, that's not relevant, but it is still relevant. The next thing is, for instance, that Bahrain is still in unrest. So Bahrain was in unrest during the time of the Arab Spring as well. So, and those protests still across the years, they Bahrain kept, is where it started from, no? That in Bahrain during the Arab Spring there were protests. The person who emulated himself was in Tunisia. Tunisia. I'm sorry, it happened in it Tunisia. started in Yeah. Tunisia, but it spread like a Right. fire around multiple places. But for instance, the Assad government fell, and it started from there, the Arab Spring. And likewise, What's the exact question? We are Yes, very short so on I'm time. saying that it is still relevant to the Arab Spring. So do you think it's still It is the relevant? second phase. Absolutely yes. देखिए हमें ना इस वक्त एक मिनट में जब हमारा दिल चाह रहा है ईरान जीत जाए, है ना, चाह रहा है ना, हमारा दिल चाह रहा है ईरान इजराइल की ऐसी तैसी कर दे, दिल चाह रहा है ना, फिर हमारा दिल चाह रहा है अरब स्प्रिंग हो जाए. But you know, you need to understand that there are a lot of other dynamics that are at play. We can wish something, but what is happening on the ground may be very different. So I would like to think that you're right, but I don't see it happening immediately. Okay. Mike at the front. There was a question at the front. My question to you is, you stated in the earlier bit that it's the Shia Sunni regime which is going to start. My question was, because I have been told that the Wahhabi movement by the Saudis was started in the late 50s and 60s. So if we think of what you're saying, that means that this whole thing has been planned since Of then, course. it's been going on. I mean, it suited them perfectly that the Shias fought the Sunnis. It suited them. Even now, as I speak to you, they're trying their level best that the Gulf states and Saudi Arabia go into a direct confrontation with Iran, and they sell arms to both. I
am going to say this. You see, there were papers that were declassified of the Iraq-Iran war. And Henry Kissinger was a security advisor at that time. So somebody said to Henry Kissinger that this is against the law that you are selling arms to Iran and Iraq. This is 7 years war. He said, of course we are going to sell arms to both of them. If we will not sell arms, somebody else will. Let the dogs kill each other and die. And US had instigated Iraq to attack Iran and use chemical weapons on them. And when they wanted to invade Iraq, they said Iraq has chemical weapons and we need to go in. Yes. So one of the things that is, I say 3 things about the US. It is humiliated, it is isolated, and it is exposed. Wow. Like never before. Your name, sir? Amar. Okay, Amar, go ahead. Ma'am, thank you to you and Fanoon for the enlightening discussion. Ma'am, after post-Cold War, there were 3 main visions: Francis Fukuyama, the end of history, Yes. and Samuel P. Huntington, the clash of civilization, and as you mentioned, John Mearsheimer, about the nation-state and power struggle. So if we see a manifestation of John Mearsheimer, as we say that his theory has been more relevant, but as we see the Secretary of State saying the religion things aloud, can we say the vision of Samuel P. Huntington regarding the clash of civilization is also being manifested along with that? Oh, Yes. Kindly another one, that ma'am, Graham T. Ellison in the clash Destined for War said that out of 12 of the 16 cases there was war, and he said that US and China would not end up in war if there is a statecraft and sophisticated diplomacy. But as we see that diplomacy is being torn apart, can we see another incident where there is a clash of the great powers? What do you think? Okay, so I think it's clash of civilization. American scholars now are saying that Persia is 500 years old, and you can bring down Iran, you can't bring down Persia. That's what they're telling the Americans. So I think it's a clash of civilization. No, it's Amber's turn. And one more thing to your question. I don't think China will ever go directly in the war. China will let Russia fight this war and then reap economic benefit. It only plays on the economic pitch, and that is a pitch it will continue to play on. Okay, I don't think so. Who's Amber? And where do you study? I'm in Bhairia. MS. Okay, you've done MS from Bhairia. Yeah. Okay, Amber. How many chances are there for Pakistan to be attacked, to remain in the war? जितना पीछे रहेंगे उतना बेटर है, या जितना आगे आके अपने आप को प्रोमिनेंट करेंगे, बिकॉज वी आर ऑलरेडी समबडी जिसको थ्रेट मौजूद है. तो मेरे नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को अभी किसी डायरेक्ट अटैक का ख़तरा है. एट द एंड ऑफ द डे आप न्यूक्लियर पावर हैं. दूसरा, आपको चाइना टूथ एंड नेल विद इंटेलिजेंस सपोर्ट करता है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में किया था. जो हो सकता है वो जिसकी कल आवाज़ें आ रही थी, इस सम एडवेंचरिज्म ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर. वेस्टर्न बॉर्डर पे इस जंग का हमें ये फ़ायदा हुआ कि कतर ने अफ़गानिस्तान से कहा कि आप ये शरारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बंद करें, वरना हम आपका वजीफ़ा, आपके पैसे बंद कर देंगे. सो दैट्स वन स्मॉल गुड दैट इज़ कम आउट ऑफ दिस वॉर. और आप देखिए अभी वेस्टर्न बॉर्डर पे थोड़ी सूरत हाल बेहतर है. ईस्टर्न बॉर्डर से कुछ हो सकता है वो पाकिस्तान हैंडल कर लेगा. वे टू गुड एट इट. आई डोंट थिंक पाकिस्तान को वो डायरेक्टली करेंगे. पाकिस्तान का जो ये इस वक्त लेवरेज है ऑफ बीइंग एबल टू टॉक विद एवरीवन विल बी यूज्ड. आई सी होपफुली यस. लेकिन इकोनॉमिक पेन पाकिस्तान पे भी आएगा. बाय द वे, डॉकिंग से जो हम शिप्स इस वक्त डॉक कर रहे हैं पोर्ट कासिम पर, कराची पोर्ट पर, और अब गवादर पे भी शुरू हो गया है, जो पूरे 2025 में पैसे कमाए थे ना, वो अकेले मार्च में कमाए. तो पैसे ये लोग कमा रहे हैं. अब जो भी आपके मेरे पैसे. जी सर, शॉर्ट क्वेश्चन. जी, ईरान भी कमा रहा है जी. हमने इसराइल की बात नहीं की कि वो अपने आप को कैसे पोजीशन कर रहा है इन टर्म्स ऑफ देयर हेगेमनी. आप कैसे देखते हैं कि अभी जो ये सारा कुछ हो रहा है इसमें वुड इट एंड, या वो हेगेमनी उसकी चलती रहेगी? ओके, सो इजराइल इज अ वेरी, it's not smart, it's clever. And I think right now Israel also wants to end the war because there is a lot of pain in Israel. वहाँ पे 2 variables हैं.
एक वेरिएबल तो ये है कि वो अभी जंग रोक दें, और लेकिन वो स्ट्रैटेजिक पॉज होगा, दे विल अटैक अगेन जैसे उन्होंने पहले अटैक किया था। ईरान इंश्योर करना चाहता है कि इज़राइल उसके साथ ये सब कुछ दोबारा ना कर पाए। दूसरी कंपल्शन जो ट्रंप की है, बिसीज प्रेसिडेंट की, वो नेतन्याहू की भी है। ही इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग इजरायली प्राइम मिनिस्टर। He has corruption charges on him. His wife has corruption charges on him. And for him to stay out of the jail, he needs to at least paint a picture where he says, I've won the war, to go back into the elections again. इसीलिए आप सोचो उसने लेबनान का फ्रंट भी खोला हुआ है। वो फ्रंट वो खोले रखेगा। लेबनान को पाउंड करना आसान है, वहाँ से जवाब कम आता है। अभी हिजबुल्ला थोड़ा बहुत जवाब दे रहा है, लेकिन लेबनान जवाब नहीं देता ना, हिजबुल्ला जवाब देता है, नॉन स्टेट एक्टर है। ईरान से उसका ख्याल था कि ईरान उसे वो ट्रॉफी दे देगा कि वो इलेक्शंस में जंग जीत के बाहर निकल जाए। It hasn't. So this war is a classic case of miscalculation by the powerful. Right. So we're going to take two questions together by Shiza and then by Ikram. Who's Shiza? Thank you so much, first of all, ma'am, for coming between us and Fanoon as well. मेरा सवाल ये है कि we really appreciate role of Pakistan for global diplomacy, but we also see a compromise in the regional ground, we say. हम अक्सर ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पर we see conflict. तो इसको हम कैसे होपफुली देख सकते हैं कि बिकॉज द वर्ल्ड इज़ गोइंग टूवर्ड मल्टीपल कनेक्टिविटी, तो पाकिस्तान के लिए भी देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि इन हालात में हम मल्टीपल ऑप्शंस देखें और सेफली देखिए, पाकिस्तान हैज़ प्रूवन इटसेल्फ टू बी मिलिट्री पावर एट पार, able to counter an enemy which is 8 times larger than it. तो वो तो उसने अपना एक क्रेडेंशियल इस्टेब्लिश किया है। पाकिस्तान के इस क्रेडेंशियल को लोग बार बार किराए पे मांगेंगे। ठीक है ना, सऊदी अरब ने भी किराए में मांगा है, वो भी और लोग भी मांगेंगे। तो ये क्रेडेंशियल हमारे लिए है विच कैन टर्न टू एन इकोनॉमिक डिविडेंड ऑल्सो। बट एट द अदर साइड यस, जब ये इकोनॉमिक डिविडेंड होता है ना तो उसके साथ दूसरे डिविडेंड्स भी आते हैं। इस वक्त अमेरिका के साथ गुड बुक्स हैं तो वो IMF भी थोड़ा ठंडा हुआ है। वो है ना, वी गॉट आर क्या कहते हैं उसको, आई एम गेटिंग टायर्ड नाउ, आई हैव हैड अ फुल डे, सो दिस आवर नेगोशिएशंस वेंट रीजनेबली वेल। या पाकिस्तान का मसला दूसरे मुल्क नहीं है, पाकिस्तान का मसला हम है। It's bad governance. I don't know, who do we have for ruling us? Who's ruling us? I don't know who are these people. बस इससे पहले आप बोल ही दें who's ruling us, we'll take Ikram's question. Ikram. क्या आपने क्वेश्चन ही सबकदोश कर दिया, दस्तबरदार हो गए आप इंटर्नशिप से। Go ahead. Didn't you already ask? You're already done, sir. Go ahead. Assalamu alaikum, Ms. Bagai. I'm not one of the international relations students. मैं तो ऐसी Instagram पे देखा था तो I was interested, मैं आ गया। एंड आपने ऑफर किया कि अगर क्लासरूम में आ सके, तो आई एम प्रीटी ओल्ड, मैं इस ग्रुप का नहीं हूँ, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो आई वुड लव टू अटेंड योर लेक्चर्स फ्यूचर में। हम आपको गप लगाने बुला लेंगे। ओके आपने बात की कि मुस्लिम उम्मा जो है उसका कॉन्सेप्ट ये इट्स अ फार्स बेसिकली। तो आई वाज बोर्न इन द लेट 80s, तो मेरे वालिद साहब जो बताते थे कि भुट्टो साहब ने सारे, वो एक फेमस पिक्चर है 70s में OIC सारे बैठे हुए हैं, इस्लामिक समिट, हाँ, उनमें से अब कोई भी जिंदा नहीं है। ये मेरे मतलब लोग पीपल टॉक अबाउट दिस ऑनलाइन। तो मुझे बात करनी थी कि मेरा भी बबल बर्स्ट हुआ है पिछले 6-7 सालों में, तो मुझे पूछा था OIC के बारे में। तो OIC इज प्रीटी मच डेड, राइट? इट्स फेयर टू से दैट, मतलब इट हैज नो रियल थिंग अबाउट OIC। जब मैं मास्टर्स कर रही थी ना इंटरनेशनल रिलेशंस का, तो हम कहते थे OIC, सो इट्स अ पेपर टाइगर एट बेस्ट। लाइक जिसको जिस तरह अभी ट्रम्प कह रहे हैं ना कि विदाउट अमेरिकन सपोर्ट NATO इज अ पेपर टाइगर। OIC हैज़ नो स्टैंडर्ड। क्या कर लिया कश्मीर पर, क्या कर लिया पैलेस्टाइन में? ईरान तो अब हुआ है यार, बच्चे मर गए, औरतें मर गई, भूख से मर रहे हैं आज भी, अभी भी एज आई स्पीक टू यू। दवाइयाँ नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रात को 2-2, 3-3 महीने के बच्चों को चूहे काट के चले जाते। सोचा भी है कभी क्या हो रहा है वहाँ पर? कौन सी उम्मा? शर्म आनी चाहिए कहने को कि अगर हम उम्मा है तो ये हो रहा है, और जो ये अरब वर्ल्ड है उसके तो नेक्स्ट डोर हो रहा है। और ये तो इजराइल को रिकग्नाइज करने जा रहे थे इब्राहिम अकॉर्ड्स में। 7 अक्टूबर
के पे रिकग्निशन होनी थी इसराइल की जब ये हमला हुआ है। जो चार्जेस है ना नेतन्याहू पे, उसमें से एक सबसे बड़ा चार्ज ये है कि 7 अक्टूबर का हमला हो कैसे गया, बिकॉज इट कम्प्लीटली चेंज द डायनेमिक्स ऑफ द मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स। तो पैलेस्टीनियंस ने तो जान दे के पैलेस्टाइन का नाम बचाया है अभी, लिटरली अपनी बच्चों की जान दे के। Nasrullah and Hasnan, and we're going to take these questions together. Nasrullah, both of these questions together. It's fine. Both of these questions together. जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा एक सवाल है आपसे कि हमने अब तक बात की, उसमें हमने ये कहा कि ईरान जो है वो अमेरिका की रिजीम नहीं है, लेकिन क्या कभी हमने ईरान को एज अ यूएस रिजीम देखा है, हिडन रिजीम? जिस तरह से अगर हम देखें तो इस वॉर से पहले जैसे ये भी सीज़ फायर हुआ है, सीज़ फायर से पहले एक सीज़ फायर होने जा रहा था पैलेस्टाइन के और गाज़ा और बिटवीन दी इसराइल, लेकिन उसके फ़ौरन बाद उसके जैसे ही वो सीज़ फायर की बातें गर्म होने शुरू हुई तो ईरान ने हमला किया। ईरान ने किसको पे हमला किया? ईरान ने इसराइल पे हमला किया था। कब किया ईरान ने इसराइल पे? 2025 में मैम हमला किया था। ईरान ने इसराइल पर कभी भी हमला नहीं किया। इंटरसेप्ट वो मिसाइल्स इंटरसेप्ट हो गए। ईरान ने कभी हमला नहीं किया। ईरान नेगोशिएशंस में बैठा हुआ था तो इसराइल ने ईरान पे हमला किया 2 दफा। मैम वो प्लीज गेट दिस करेक्टेड। ओके मैम। ये प्रोपेगेंडा है, ये अमेरिकन प्रोपेगेंडा है। और आप मुझे बात बताइए, जो एनपीटी का तोहफा है ना, ये रज़ा पहलवी देके गए थे। उस वक्त अमेरिका से बहुत दोस्ती थी। जो अमेरिका का, जो ईरान का ग्रीन एनर्जी न्यूक्लियर प्लांट है, वो फ्रांस और अमेरिका ने बना कर दिया था उस वक्त। देखिए, इसीलिए ना हमको लगता है कि ये हयात ही चलती रहेंगी। रेवोल्यूशन आया ईरान में। ईरान इज़ अ रिविजनिस्ट पावर। रिविजनिस्ट पावर्स वो होती हैं जो स्टेटस को तब्दील कर रही होती है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो ये भी है ना कि 9/11 अमेरिका ने खुद करा दिया, फिर उसके बाद आज तक भुगत रहे हम। Ma'am, my question is, what about China? Will it become superpower or not? And you have already colored China and India both green. So what about India? If it will take boom, then what about Pakistan? Pakistan का क्या बनेगा जब इंडिया अगर मजबूत हो जाता है? आपको पता है ना फैज ने क्या कहा था? उसका कुछ नहीं बनेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। Okay, मैंने नहीं कहा था फैज अहमद फैज। यार अब इजाजत दो, आई नीड टू गो। ये आपने ही इनको इतना जो है ना फ्री कराया। हम तो इतने क्वेश्चंस कभी लेते नहीं है, हमारा जो है भाड़ा बढ़ जाता है। तो ये आपने खुद मिलके ये सब किया, ये मेरा कसूर नहीं है। मैडम, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। No, we will take one more after this. Concerned about media person. Fanoon give me opportunities of all of them to, you are versatile and versatile personality. Is expose your views at electronic media. This is great opportunity. My question is concerned about that. You know that the Mr. Trump is the addressing and negotiation with Prime Minister of Japan's Lady Prime Minister. आपको तो याद होगा, just you remember, आपसे बेहतर कौन जानता है। हमने देखे जैसे किया था, एटम बम फेंका था, उनको ज़रा शर्म नहीं आई कि याद दिलाएं वो। उसके बाद हम भी यही करेंगे। और Mr. Trump is repeated, we just go thrown back an era of stone. What is your opinion? It is possible there's कि वो न्यूक्लियर थ्रेट कर दे, न्यूक्लियर अच्छा, I think let's take Zubair's question with that. Who's Zubair? I hope to God it doesn't happen. I hope sanity prevails. आप लोग सोच पे, न्यूक्लियर वेपन्स कभी यूज करने के लिए बनाए नहीं गए। They're just there for deterrence. मुझे थोड़ा सा खदशा इसलिए कि उसने अपने फौजियों को हटाया है। मैं सोचती हूँ क्या करने जा रहा था जो उनको हटाना पड़ा। सो आई होप टू गॉड नो, आई होप सैनिटी विल प्रिवेल। मैं सोचना भी नहीं चाहती कैसे होगा, हम भी नहीं बचेंगे होगा तो। प्रॉक्सिमिटी देखें ना, आप जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी देखें, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया। अस्सलाम वालेकुम मिस, इट वाज ग्रेट लिसनिंग टू यू। ये जो आपने अभी सिचुएशन बताई थी, तो आई रेड द होल सिनेरियो इन द इकोनॉमिस्ट एयर अहेड जो एल्डी इशू होता है, तो उसमें आया था कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है पहले चलता था पोस्ट 1948, अब चलेगा पोस्ट 2025 वर्ल्ड ऑर्डर। तो मुझे पूछना था कि द मोर वी स्टडी इंटरनेशनल रिलेशन, वी काइंड ऑफ स्टार्ट टू प्रिडिक्ट
कि फ्यूचर कैसा होगा, तो हमारी प्रेडिक्शंस कितनी एक्यूरेट हो सकती हैं और कितनी नहीं हो सकती हैं? अगर हमें सब पता है। ग्लैड तुमने ये सवाल पूछा। देखो, जो ये इंटरनेशनल रिलेशंस के पंडित होते हैं ना, मेरे समेत, वी ओनली रिसाइकल थिंकिंग, एग्जिस्टिंग थिंकिंग्स रिसाइकिल करते हैं। जब सोवियत यूनियन की डिसइंटेग्रेशन हुई थी ना, टूटा था ना सोवियत यूनियन, नॉट अ सिंगल पंडित ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस हैड प्रेडिक्टेड इट. Nobody had predicted the disintegration of Soviet Union like nobody is predicting the downfall of America. I will end my case. Rest my बहुत case. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमा बकाई. The only thing that's left is to award the internships, which we will do 2 minutes. You can join the audience in the meanwhile. In 2 minutes we will announce. Anas, आप इनके साथ मशवरा कर लो who should get the internship. Okay, we will announce that in 2 minutes. I just want to say कि फ़नून का पूरा मकसद ये है कि there is so much interest in intellectual dialogue, in engaging with amazing academics and amazing people on serious topics. और हमें लगता ये है कि ऐसी महफ़िलें possible नहीं हैं, but they are. So please do support us. There is a donation box right here, and that is how we function. So please do support us for the next quarter through the donation boxes, and you can follow us through this QR code that is right in front of you. We will be back next month, and if you want to join our WhatsApp group for updates, then Arbaz is the person. Arbaz, can you wave them? Can you show yourself? So alhamdulillah for one more session, and I would thank my parents and the speaker. Thank you so much. What a great session. The audience, the team and our sponsors, Habit City, Oceanic Group, Getz Pharma, Digital Hawk, and Shahid Saab. Did you like any question better? Do you remember any really good question? Okay. So, Amber, I think we can have you for the graduate internship, and if you could join us on stage. And Imad and Zubair, we will decide amongst you, but you both can come and we can have you for the undergraduate internship. Please join us on the stage for a picture, and you can award them. Inke posters. And those who are here, please post stories about us. You can tag us, and that's how people who want to attend such sessions but don't know Fanoon is happening. There's a whole youth community that we want to reach. So please do promote us, and you can put, even a story does a great job. And I don't see Kishwar Appa, but Amina Appa and Kishwar Appa, thank you so much for coming. Or I was just telling Dr. Bakai upstairs that Fanoon is inspired by Amina Sayyed's work, and that's why we're here. Thank you so much, Azhar Saab and Lubna. I hope you keep coming.